ریڈی. اچھا میاں صاحب، آپ نے آج یہاں دورہ کیا ہے، وزٹ بھی کر لیا ہے، دیکھ بھی لیا ہے، تو پانی کا بہاؤ انتظامیہ کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ مسلسل بڑھ رہا ہے. آپ نے وزٹ کر کے دیکھ لیا ہے اور یقیناً آپ نے اعلیٰ حکام سے بھی بات کی ہوگی اس حوالے سے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ پانی کا بہاؤ کب کم ہوگا اور مزید اس سیلاب کی صورتحال کے بعد جو حالات ہوں گے تو اس کے لیے کیا عوامی مشن پالی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو اندازہ ہے کہ 3 دن ہو گئے کہ نوشہرہ کو اور چارسدہ کو اطلاع دی گئی تھی کہ سیلاب آئے گا اور آپ اپنے آپ کو محفوظ مقامات تک لے جائے تو یہ بہتر رہے گا. تو میں تو 3 دن سے مسلسل یہاں پہ ہوں اور میں اپنے تحصیل پبی میں یعنی 2 دن قبل ان علاقوں میں گھوما پھرا اور ان کو یہ اطلاع دی کہ آپ گھروں سے نکل آئیں اور خاص کر خواتین اور بچے اور ساتھ میں جو جانور ہیں تو ان کو ساتھ کے لے جائیں اور اس طریقے سے بوڑھے اور پھر ہمارے جو بزرگ ہیں وہ بھی. تو اس بنیاد پہ پھر وہ اسکولوں میں محفوظ طریقے سے آئے اور ان محفوظ یعنی اسکولوں میں ہم رات کو پھر گئے اور ان کا پرسان حال پوچھا. اور آج ہم نے یعنی پشاور سے ایک پیکج لے کے آئے اور ہم نے یعنی ان تمام لوگوں کو بسترے بھی دیے، خوراک کا سامان بھی دیا اور تقریباً کھٹکلی میں جو ہمارے 3 یہاں پہ انہوں نے یعنی اسٹیشن بنائے ہیں کیمپس، تو اسی میں ہم نے بھی تقسیم کیے. اور پبی میں بھی ان علاقوں میں چونکہ نوشہرہ کا علاقہ زیادہ افیکٹ ہوا ہے تو ہمارے نوشہرہ قلعہ کے جتنے ساتھی تھے وہ کھٹکلی میں ہیں تو ان تک پہنچایا. اور اس طریقے سے ہمارے محب بانڈا اور بانڈا شیخ اسماعیل اور اس طریقے سے ہمارے جو وہاں پہ مومن گڑھ ہے ان علاقوں کے جو مکین تھے تو ان کو بھی ہم نے آج خوراک بھی پہنچایا اور بسترے بھی، اور کوشش کریں گے کہ وہ وہاں تک پہنچے. آج میں آپ کے سامنے نوشہرہ ہی میں اور اس پل پہ کھڑا ہوں تو رات کو بھی مین پل پہ میں آیا تھا اور وہاں پہ میں نے کچھ باتیں کی تھی. یہ جو آپ ابھی اطلاع دے رہے ہیں اور کچھ امکانات ایسے ہیں کہ جہاں سے خطرہ تھا وہاں پہ تو پانی اس طریقے سے نہیں ہے. یعنی وہ انہوں نے یہ اطلاع دی تھی کہ مینگورہ سے، سوات سے، دیر سے، چترال سے، کوہستان سے وہاں سے جو پانی آ رہا ہے تو ایک ریلا ہے تو وہ تو کل رات کو وہ ریلا گزر گیا لیکن پانی میں کمی نہیں آئی اور پانی میں اضافہ ہوا. اور ابھی یہ اطلاع بھی ہے کہ یہ پانی جو ہمارے سیلاب کا پانی تھا وہ تو یعنی اس کا کلر جو تھا وہ گندیلا تھا یعنی وہ خاکی تھا اور اب جو ہے وہ سفید ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ڈیم سے اسپل وے کھل کے آیا ہے. تو ہمیں تو یہ اندازہ ماہرین کو ہوگا لیکن ورسک ڈیم کے حوالے سے یہ بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ خطرہ موجود ہے اور شاید پانی اتنا اوپر آئے کہ ہمیں مجبوراً اسپل وے کھولنا پڑے گا. لیکن ابھی ہمیں معلومات نہیں ہے کہ یہ تو ربیلا ڈیم کی وجہ سے ہے یا ہمارے ورسک ڈیم کی وجہ سے ہے یا کہیں اور وجہ سے ہے، لیکن پہلے سے پانی یعنی زیادہ ہوا ہے اور خطرہ یعنی پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہے. تو ہم یہی کہیں گے کہ نوشہرہ کو خاص کر ابھی چونکہ نوشہرہ ہی پہ پریشر زیادہ ہے اور یہ دریا کا بہاؤ جو ہے وہ نوشہرہ ہی میں یہی ایک جگہ ہے جو کہ یہاں پہ پھر ہمارا کالا باغ جو یہاں پہ آتا ہے تو اس میں برک بھی لگتا ہے. تو ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم نوشہرہ والے تو پہلے سے یہ رو رہے تھے کہ یعنی کالا باغ ڈیم نہ بنایا جائے. اب سارے دنیا دیکھ رہے ہیں اگر یہ ڈیم بنتا تو آج تو یہاں پہ انسان کا نام و نشان ہی نہ ہوتا. یعنی ڈیم نہیں بنا اور یہ پوزیشن ہے اور بڑے یعنی ہمارے انسانی دشمن پختونخوا کے دشمن وہ کہہ رہے کہ ڈیم بنتا تو سیلاب نہ آتا تو ڈیم کے اس پار سیلاب نہ آتا لیکن اس پار تو پانی پانی ہوتا. تو کیا ہم عقل کے اندھے ہیں؟ تو جو بھی یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ سازشی لوگ ہیں. کالا باغ ڈیم نہیں بنا تو یہ ہمارے اکابرین کی کمال ہے کہ انہوں نے پہلے سے یہ دیکھ لیا تھا کہ اگر یہ بن جائے تو یہاں پہ تباہی ہوگی. اب ہم سارے یعنی ہم حکومت سے بھی، صوبائی حکومتوں سے بھی اور مرکزی حکومت سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ ہمارا پرسان حال کریں. البتہ ریلیز کے حوالے سے ایک بات ضرور کروں کہ یہ نوشہرہ میں جتنا میں گھوما پھرا تو تمام کے تمام
यानी मेन सड़क जो है जर्नेली रोड, इससे इस पार तमाम घर जो है वो दरिया के पानी के यानी उसके बिल्कुल वो यानी बीच में यानी पानी घरों में जा चुका है और घर भर चुके हैं। तो बिजली की यानी बिल जो आ रहे हैं, कम से कम हुकूमत अगर सचमुच में रिलीफ देना चाहती है तो बिजली तो इस महीने का न ले। जब हम घरों में गए नहीं बिजली इस्तेमाल नहीं की और फिर भी बिजली का बिल आए तो वो तो तुम रिलीफ दोगे 25,000 और बिल आएगा 30,000 और 50,000, तो फिर उस रिलीफ का हम क्या करेंगे, उसको रोएंगे। तो मैं ये बात आज मैं नौशेरा की सरजमीन से, जो कि हमारे साथियों को एक तकलीफ है, मैं तो कहूँगा जहाँ जहाँ सैलाब आया है, जहाँ जहाँ लोगों को तकलीफ हुआ है, इस बार ये यानी रिलीफ जो है हुकूमत दे और जो खर्च आएगा तो वो हुकूमत दे, तो ये मुनासिब रहेगा। और फिर मैं ये कहूँ कि कोई इस गफलत में न रहे कि सैलाब नहीं है। आज भी सैलाब उससे बढ़ के है, तो हम ये समझते हैं कि NGOs ने यहाँ पे जो काम किया है हम उसके मशकूर हैं, जो हुकूमत ने यहाँ पे काम किया है हम उसके भी मशकूर हैं। और हम साथ में ये भी कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि ये ज़िम्मेदारी हुकूमत की है। जब हमारी अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत थी 2010 में सैलाब आया तो उसमें हमने अपने तमाम ADPs को, जो डेवलपमेंटल ADP थे, उस सब को हमने मुंजमद किया और तमाम पैसे हमने यानी सैलाब ज़दगान के लिए वक़्फ़ कर दिए। तो आज हुकूमत को चाहिए कि तमाम के तमाम जो ख़ज़ाने में पैसे हैं वो सैलाब ज़दगान के लिए वक़्फ़ करें, उनके घरों का पुरसान हाल करे, बिस्तरों का पुरसान हाल करे और उनके यानी कम से कम 1 महीने के खुराक का बंदोबस्त के लिए पैसे तो उनको दे कि अब तो उनको घरों में पानी भर चुका है तो वो क्या करेंगे। तो ये हमारी डिमांड है और ये हम सैलाब ज़दगान से मिले हैं और हमने कैंपों में जो देखे हैं तो हमने औरतों को भी बिलखते हुए देखा, बच्चों को भी रोते हुए देखा और बूढ़ों को भी तकलीफ़ से देखा और सारी आबादी को भी बड़ी तकलीफ़ है। तो हम ये समझते हैं कि गफलत न बरती जाए, इमदाद दी जाए। मरकज़ी हुकूमत को भी कहते हैं, सूबाई हुकूमतों यानी मैं सिंध की भी बात कर रहा हूँ, मैं पंजाब की भी बात कर रहा हूँ, मैं बलूचिस्तान की भी बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी सैलाब ने तबाही मचाई है। तो हम उन सैलाब ज़दगान के लिए भी यही कहेंगे कि उनका भी पुरसान हाल हो और खैबर पख्तूनख्वा में जो सैलाब है इनका भी पुरसान हाल हो। और तमाम आलमी बरादरी से अपील करते हैं, तमाम आलमी बरादरी से कि जिन का जहाँ जहाँ पे भी बस चले तो वो हमारे इस सैलाब ज़दगान की मदद करे। और फिर मैं अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करूँगा और साथ में IMF और वर्ल्ड बैंक से कि वो भी इस कार्य खैर में यानी हमारा साथ दे और सैलाब ज़दगान के लिए जितनी भी मदद हो सके वो करें। अच्छा सर, अहम बात जो एक दौरे की है बंद के हवाले से जो बंद की पोस्टर बांधा गया था, बड़े दावे किए जा रहे थे कि नौशेरा महफूज रहेगा और पहले सैलाब में बंद उड़नचू हो गया और नौशेरा कला तबाह हो गया इसी बंद। आप यकीन करें मुझे बहुत कुछ मालूमात है, लेकिन इस हवाले से कि इसको यानी सैलाब को हम सियासी रंग देना नहीं चाहते। हम ये समझते हैं कि तकलीफ़ है तो सबको है, हुकूमत की अगर कोई गफलत है तो उसकी तहकीकात की जाए। बंद के हवाले से जो कुछ हुआ है तो हम तो यानी आप तमाम डैम्स की बात करें जहाँ पे यानी ये तकलीफ़ हमें सामने आई है और उस वजह से सैलाब यानी ख़तरनाक सूरत अख्तियार कर चुका है। तो जिन लोगों की गफलत है उनको सज़ा दी जाए। और साथ में ये कि अगर हमने ये इंतज़ाम किया और सैलाब नहीं आएगा तो मैं आज भी कहता हूँ कि नौशेरा का बंदोबस्त हो सकता है। बदकिस्मती से हमने इसका वो इलाज नहीं किया जो होना चाहिए। हमारा पेशावर से लेके अटक इस दरिया को हम यानी जिस तरीके से लंदन में और जिस तरीके से मॉस्को में तमाम दरिया को कवर किया गया है और उसको इतना कवर किया गया है कि इलाके महफूज हैं और उसके गिर्द नवा में वहाँ पे उन्होंने यानी शॉप्स बनाए हैं और जो बेरोज़गार लोग हैं उनको रोज़गार भी मिल गया है।
तो अगर आज भी पिशावर से लेकर अटक तक ये तमाम दरिया जो है या ये जो पानी है उसको कवर किया जाए तो उससे आमदन भी होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खर्चा है, उसकी आमदन भी होगा, बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। और पिशावर और नौशेरा और अटक तक इसके गिरदो नवा में जो देहात है चारसद्दा और इस तरीके से और देहात, तो वो महफूज रहेंगे। तो ये एक हमारी इस मुसीबत के वक्त में ये तजवीज़ है कि जो भी इसको करे तो खुदा उनका भला करे, लेकिन ये एक हल है कि अगर हमें सैलाब से महफूज रखना है तो इसके लिए बंदोबस्त करना है। अच्छा सर, नौशेरा में इंतजामिया की जाने से 55 रिलीफ कैंप जो है वो कायम किए गए, तकरीबन 2,29,000 लोगों को महफूज मकान पर मुंतकिल किया गया। इंतजामिया की जाने से जो दावे किए जा रहे हैं और सूबाई हुकूमत जो दावे कर रहे हैं, क्या आप उनसे मुतमईन हैं? मैं तो ये कहूँगा कि किसी हद तक इंतज़ामिया ने हमारे नौशेरा में उन्होंने कुछ इक़दाम उठाए। एक जो हमें बात लोगों ने बताई कि इन्होंने जो बिस्तरे दिए हैं हमने तो दिए, हमने कहा कि ये अपने घर ले जाए, लेकिन उन्होंने जो फोर्स दिए हैं तो इनके लोगों ने उनसे कहा है कि ये हमें वापस करना है। तो ये अगर इंतज़ामिया ने ये कहा है तो इंतज़ामिया को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो यानी उनको कह दे कि जिन जिन के हिस्से में जो जो बिस्तरा या फोम आया है तो वो अपने साथ लेके जाए। ये अजीब सी बात हो गई कि हमें वापस कर दे, तो वापस किराए पे लाए हैं या क्या किया? तो किसी से वापस न मांगा जाए। और अगर इंतज़ामिया ने हुक्म नहीं दिया और बीच में कोई लोग ये हुक्म दे रहे तो उसकी तहकीकात की जाए। लेकिन हम मुकम्मल तौर पे तो इत्मीनान बड़ा मुश्किल है, ये कुदरती आफत है। हम खुदा से दुआ करते हैं कि खुदा दुनिया भर में इंसानियत को जो कुदरती आफत से तकलीफ है तो उस आफत को दूर कर दे, यानी उस मुसीबत में हमें सहारा दे। और हम खुदा से ये उम्मीद रखते हैं कि आज पाकिस्तान में जो सैलाब से जो तकलीफ है तो हम खुदा से ये दुआ करते हैं कि खुदा हम पे रहम कर, हमारी फरियाद सुन। और ये इतनी बड़ी मुसीबत आपके बस में है, ये इंसान के बस में नहीं है कि टल जाए। और इसी तरीके से मैं तमाम यानी जो लोग आज सैलाब से बच गए हैं तो उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि ये तो सैलाब आप पे भी आ सकता था, तो अगर खुदा ने फजल किया है आप सैलाब से बचें तो आप लोग सैलाब ज़्यादा लोगों के लिए यानी दुआ भी करें। और तमाम लोग जो बच गए हैं तो वो 2-2 रकात नफल पढ़े और खुदा के हाँ सर बसजूद हो और खुदा से खैर मांगे। और खुदा सबसे बड़ा यानी बड़ा भला करने वाला है। तो हम इज्तिमाई यही कहेंगे कि खुदा हमें महफूज बना और हर आफत से महफूज बना। और एक आफत जो है वो कुदरती आफत है जो समंदर यानी पानी आया हुआ है, एक आफत और पानी के आफत से यानी सैलाब से भी महफूज बने।